فلنبدأ. أنا أشارك شاشتي الآن، وهذا أفعل ذلك. شاشتي واضحة؟ نعم. أوكي. جوجل دوك. أسجل هذه الجلسة. نعم، بدأ التسجيل. نعم أستاذ، بدأ التسجيل. signatory. الكلمة signatory. أولا أكتب هذه الكلمة signatory. دعني أكبر الحجم. signatory. Someone who has the power to sign, who is vested with the signatures का मतलब हुआ। هذا يعني somebody who is vested with signature. vested، كيف نقول هذه الكلمة vested؟ يعني خول به. vested with or the signature is vested in somebody. The signature in whom, yeah, the signature in signature vested in, vested with, vested in दोनों यूज करते हैं। ठीक है, जिसके पास सिग्नेचर का इख्तियार हो। खवल बिही, vested with का मतलब होता है ماذا تعني هذه الكلمة؟ خول vested. then نحن نترجم هذه الكلمة المخول بالتوقيع. مفهوم؟ خول يخول تخويلا. right. Okay, so you can also say vested with government, ruling या government, vested with governing power, governing power. तो क्या बोलेंगे? المخول المخول بالسلطة، المخول بالحكم، المخول بالسلطة. هل لديكم مثال آخر؟ vested with. قولوا، هاتي أمثلتكم إخواني. चलिए कोई भी बोलिए। vested with, vested with कुछ भी, कोई भी पावर लगा दीजिए। vested with was running the institute. क्या बोलेंगे? vested with enacting the law, running ना करके enacting law, जिनको कानून बनाने का अख्तियार है। vested with jurisdiction, से कानून बनाने के jurisdiction का अख्तियार हो। क्या बोलेंगे? المخول بالدستور. المخول بالتشريع، تشريع. enaction، بتشريع القوانين. المخول بالتشريع، بالحكم، jurisdiction حكم को बोलते हैं, तहकीम भी बोलते हैं, بالتحكيم arbitration. المخول بالتحكيم. واضح؟ هل فهمتم؟ نعم واضح أستاذ. واضح. اوكي.
هل فهمتم فيضان؟ هل فهمت أخي فيضان؟ أزير، رابعة، بشير؟ فهمنا. Okay. So the word signatory or signature, you can translate it as vested, vested with or al-mukhawwal bihi. शाशा दिखाई नहीं दे रहा सर? शाशा नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ अब जी, दे अभी रहे? दिखाई दे रहा। हाँ जी ओके, जी। ठीक है। इक़रा, इक़राई। रमीज़ा इक़राई। The first paragraph. الفقرة الأولى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम उस्ताद। طيب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rent agreement sample. Rent agreement. This rent agreement is made and entered into on this day, day of month, year, at location between landlord, landlord's full name, deciding us, landlord's full name, full address, herein after referred to as the landlord, Okay. tenant, tenant's full name, deciding at tenant's full address, herein after referred to as the tenant. Okay. तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन अल्फाज नए लग रहे हैं? المفردات الجديدة لكم بالنسبة لكم. ما هي المفردات الجديدة لكم؟ rent agreement. ما معنى كلمة agreement؟ توثيق. الاتفاقية. فهمتوا؟ الاتفاق. اوكي، الاتفاقية. agreement غالبا عادة ما نبدأ بكلمة الاتفاقية، والاتفاق معناه agree and الاتفاقية معناه agreement. Sample. In medical we translate this word. If it is a medical translation, we call it ayina, but in general we call it numuzaj. देखिए ब्लड सैंपल लेते हैं ये इसमें मेडिकल में, तो जैसे ब्लड सैंपल, तो वहां पर मेडिकल में सैंपल का जो ट्रांसलेशन होता है वो आईना होता है। जैसे ब्लड सैंपल आईना तो दम बोलते हैं। आइन से है क्या सर? कैन यू प्लीज राइट? एक मिनट मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन स्टक हो रही है। हाँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लड सैंपल। In medical translation, the sample is translated as ayina. एक मिनट, ayinatut dam, blood sample, ayina बेशद्दा, यहाँ पर तशदीद होगा, समझे? और in general عادة ما نترجم هذه الكلمة كيف؟ नमूजज, वजमअहू, नमूजज की जमा क्या आती है? नमाज़िज। हाँ, ठीक, नमूजज। और नमूजज जो है किसको बोलते हैं? फॉर्म को भी बोलते हैं, इस्तिमारा को भी बोलते हैं। युरजा मलउ हादा नमूजज, माना प्लीज फिल दिस फॉर्म। जनरली फॉर्म को इस्तिमारा बोलते हैं और नमूजज भी बोलते हैं। समझ गए? नमूजज सैंपल भी होता है और फॉर्म को क्या बोलते हैं? जी, इस्तिमारा पता है, लेकिन नमूजज पहली बार सुना है सर। आप बोल रहे हैं कि फॉर्म फॉर्म को नमूजज को इस्तेमाल बोलते हैं। करो। हाँ, जी जी। फॉर्म इस्तिमारा एंड नमूजज दोनों होता है, इस्तिमारा एंड नमूजज। समझ गए? सैंपल, नमूजज। Okay, so let us translate rental agreement sample. كيف نترجم هذه الكلمة؟ يعني هذه الفقرة، هذه الجملة. sample نموذج ها اتفاقية الإيجار. اتفاقية الإجارة. إيجار، rent إيجار. ओके, आजरा यूजिरु, ईजारन का मतलब कोई चीज किराए पर देना। समझ गए?
तो इसी से हुआ रेंट एग्रीमेंट इत्तिफाकियतुल ईजार। फहिम तुम? तो नाम। आईना भी सब, कैन यू प्लीज रिपीट? आईना तो आईना नहीं करेंगे, आईना चूंकि मेडिकल सैंपल नहीं है, ठीक है, तो नमूजज करेंगे क्या सर? यहाँ नमूजत करेंगे। आईना सिर्फ किस में करते हैं? मेडिकल में। जी आपकी आवाज स्टक हो रही है, कौन बोल रहे हैं बताइए? अच्छा चलिए ठीक है। तो ये हो गया इंटर्ड इनटू, या इंटर्ड इनटू का मतलब क्या हुआ? साइन किया गया दोनों के दरमियान, ठीक है। एट लोकेशन लैंडलॉर्ड, अम्मा माने कलिमत लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड वो है जो किराए पर दे रहा है, तो उसको आजर और यूजर कोई चीज किराए पर देना तो उसे मोजिर कहेंगे या फिर मालिकुल अकार कहेंगे लैंडलॉर्ड, यहाँ पर मोजिर के सेंस में, समझ गए। और टीनेंट, टीनेंट का मतलब जो किराए पर ले रहा है, तो अरबिक में वर्ड आता है इसके लिए इस्ताजरा यस्ताजिरु। बाबे इफ़ाल बाबे इस्तिफ़ाल में तलब की खासियत होती है। इस्ताजरा मतलब वो उजरत पर चाह रहा है उस चीज को, तो मुस्ताजिर का मतलब टीनेंट, इस्ताजरा मतलब रेंट पर कोई चीज लेना, उसी से है मुस्ताजिर। قالت إحداهما يا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين। कुरान शरीफ में आया, قد جاء في التنزيل قالت إحداهما يا أبت استأجره। उनमें से एक हजरत शुएब की एक लड़की ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बू जान आप उसे उजरत पर रख लीजिए, समझ गए। इन खैर मन इस्तअजरत अलकवियुल अमीन। तो मुस्तअजिर, मुस्तअजिर का मतलब क्या हो गया? टीनेंट, टीनेंट या टेनेंट जो भी कह लें, ठीक है। टीनेंट, चलिए। नॉट रिजाइडिंग एट फुल एड्रेस हेयर इन, हेयर इन का मतलब हेयर इन आफ्टर या अलमुशार इलैह के मीनिंग में होता है कि रिफर्ड एज, या फीमा बाद की मीनिंग में, जो नीचे के लिए हेयर इन आफ्टर का मतलब क्या होता है कि नीचे जहां भी रेफर किया जाएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स में अमूमन ये वर्ड यूज होता है। हेयर इन आफ्टर का मतलब ये होगा कि लैंडलॉर्ड नीचे जितना भी लैंडलॉर्ड का वर्ड यूज होगा उससे मतलब ये शख्स होगा जिसका यहाँ पर फुल नेम होगा, जिसका यहाँ एड्रेस होगा, तो नीचे जहां भी लैंडलॉर्ड का वर्ड यूज होगा उससे मुराद क्या होगी, उससे रेफरल, उससे इशारा क्या होगा? ये आदमी, यहाँ जिस आदमी का नाम होगा इसका एड्रेस होगा, समझ गए। ये एम्बिग्यूटी को वाज़ह करने के लिए करते हैं, लितौदीहिल गुमूद, गुमूद को वाज़ह करने के लिए, लिकई ला यकून अय्यु गुमूद फी हादिहिल वसीक़ा, यानी इस डॉक्यूमेंट में कोई गुमूद ना हो, ठीक है। टीनेंट फुल नेम फला, हेयर इन आफ्टर का मतलब नीचे जो भी टीनेंट होगा, टीनेंट का वर्ड यूज होगा, टीनेंट का मतलब क्या होगा? जिस भी आदमी का, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम हो सकता है, एड्रेस किसी का भी हो सकता है, तो नीचे जो हम टीनेंट बोलेंगे उससे मुराद ये सेकंड पार्टी होगा, अत्तरफ़ु सानी। चलिए दाना नुतरजिम, दिस एग्रीमेंट इज मेड, इज मेड मतलब जारी। तम إعداد هذه الاتفاقية and entered into का मतलब हुआ कि इस पर साइन किया गया, तो वतौक़ीउहा, तम इआदाद हादिहिल इत्तिफाक़ियतु व तौक़ीउहा, किस दिन इस पर साइन किया गया? फिल यौम, डे कौन सा डे? आज का डेट डाल दीजिए, आज कितनी डेट है? 14 हाँ, तो क्या कहेंगे? फिल यौम अस्सानी, फिल यौम अस्सानियत अशर, 14 है ना, अर्राबिअत अशर, सॉरी, अर्राबिअत अशर من दिसंबर من عام ديسمبر 2000 عام 2022, ठीक है। उसके मेड बाद के क्या किया सर आपने? क्या चीज? इज एदाद, मेड। एदाद का मतलब प्रिपेयर्ड, मेड का मतलब प्रिपेयर्ड है ना, बनाया गया, लिखा गया, ठीक है।
और मेड का मतलब ड्राफ्टेड भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? किताबा, तमत किताबतु, है ना। मेड को आप जिस सेंस में लें उस हिसाब से आप यूज कर लें। और ड्राफ्ट का मतलब तस्वीर करना भी होता है। तस्वीर मतलब मुसवदा तैयार करना है, समझ गए? तम तस्वीर, तस्वीर लेकिन नहीं कहेंगे। तस्वीर का मतलब हुआ कि आप सिर्फ एक कच्ची कॉपी तैयार कर रहे हैं। कच्ची कॉपी का मतलब ये हुआ कि वो एक फाइनल कॉपी नहीं है, उसको मुसवदा बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है। यार एट लोकेशन, लोकेशन मतलब फिल मौका, लोकेशन का मतलब मौका। बिटवीन, बिटवीन का मतलब जो भी पार्टी है, ये बिटवीन नीचे का जो पार्टी है, समझ गए? फिल मौका बैन, फर्स्ट पार्टी लैंडलॉर्ड है और सेकंड पार्टी कौन है? टीनेंट है। तो बैन, अब एक्स वाई जेड किसी का भी नाम हो, उसका फुल नेम होगा, ठीक है। मार्क ट्वेन का नाम रख लेते हैं हम, समझ गए? यहाँ हैरी पॉटर का नाम रख देंगे ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम मार्क ट्वेन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिजाइडिंग एट, रिजाइडिंग एट का मतलब क्या होगा? यस्कुनु फी, अलमुकीम, हाँ, यस्कुनु फी या अलमुकीम फी, युकीमु फी, जो भी कह लें। टीनेंट्स फुल एड्रेस क्या देंगे? बताइए, फुल एड्रेस कुछ भी डाल दीजिए। फेरी टेल, फेरी टेल का कुछ भी दे दीजिए। वंडरलैंड डाल दीजिए चलिए, वो वंडरलैंड में रहता है, हेवन में रहता है। एक हम ख्याली चीज मान लीजिए। रिजाइडिंग एट सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पर रहने वाला, ठीक है। फिर समा अस्साबिआ, समझ गए? हेरिन रेफर टू, ये एज हम फुकाहिया बोल रहे हैं, इसको आप ऐसे मत लीजिए, कोई सेवेंथ, सेवेंथ इस पे नहीं रहने वाला है सर हाँ, फ्लोर को क्या बोलते हैं सर? फ्लोर फ्लोर, को ताबिक बोलते हैं। अब ताबिक, ताबिक। अब ताबिक अस्सानी, सेकंड फ्लोर। और सर शुक्का फ्लैट को शुक्का भी बोलते हैं, शुक्का को बोलते हैं फ्लैट को। फ्लैट। हाँ, अब ताबिक अस्सानी, सेकंड फ्लोर। शुक्का, शुक्का का मतलब क्या होता है? फ्लैट, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट या फ्लैट, है ना। शुक्का, एक मिनट यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ। ताबिक अस्सानी का क्या मतलब हुआ? सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। शुक्का, शुक्का मतलब अपार्टमेंट, अपार्टमेंट या फ्लैट, ठीक है। और जैसे आपके फ्लैट में विंग होते हैं, राइट? लेफ्ट विंग, राइट विंग, तो इसको क्या बोलेंगे? जुना जी। नहीं, विंग, विंग मतलब दो विंग होता है ना, एक विंग पे लेफ्ट विंग, विंग को बोलते हैं अलजनाह, ठीक है। लेफ्ट विंग अलजनाह अल ऐसर, अलजनाह अल ऐसर। और आप जना ही बोल रहे थे, अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट अलजनाह अल ऐसर, ठीक है। और भी कुछ होता है फ्लैट में, बताइए। बालकनी। बालकनी, बालकनी को क्या बोलते हैं? शोरफा, शुरफा। शोरफा तो बालकनी, चलिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड, चलिए, लैंडलॉर्ड का नाम हेयर इन रेफर टू एज द लैंडलॉर्ड। हेयर इन का मतलब, हेयर इन का मतलब फीमा बाद, नीचे की लाइन में, समझ गए? रेफर टू मतलब मुशार इलेह, ठीक है। अल मुशार इलेह फीमा बाद बिल मुजिर बे टीनेंट, नीचे मुजिर का वर्ड से मतलब क्या होगा? जिस शख्स का भी नाम यहाँ पर आ रहा है। अशख्स अल मज़कूर बैन हादल कौसैन व उन्वानुहु, समझ गए? व उन्वानुहु अल कामिल। अच्छा, ये वाला हम कर लेते हैं, रिफर टू एज द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ टीनेंट्स का नेम आएगा, रिजाइडिंग एट युकीमु फी, एड्रेस कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर। हेयर इन आफ्टर रेफर टू अल मुशार इलैहि फीमा बाद एज टीनेंट, टीनेंट का मतलब क्या होगा? अल मुस्तअजर, टीनेंट का मतलब अल तजर। मुस्तअजर, और लैंडलॉर्ड अल मुजिर, ठीक है। अब इसको हम एक बार करते हैं,
ठीक है। रेंट एग्रीमेंट इत्तिफाकियतो अल इजार, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज मेड एंड entered into on this day 14th of December 2024, ठीक है, एट दिल्ली बिटवीन बैन, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तम إعداد هذه الاتفاقية وتوقيعها في اليوم الرابع والعشرين في اليوم الرابعة عشر، ठीक है, في اليوم الرابعة عشر من شهر दिसंबर, कानून الثاني बोलते हैं, सॉरी अल कानून अव्वल बोलते हैं, कानून अव्वल बोलते हैं, अल कानून अव्वल या फिर दिसंबर डायरेक्ट बोल दीजिए। सनत खनत 2012 في موقع दिल्ली बिटवीन बैन लैंडलॉर्ड المؤجر, लैंडलॉर्ड का नेम XYZ कुछ भी, युकीमु फी उसका एड्रेस कुछ भी डाल दे, फिर ताबिक अस्सानी सेकंड फ्लोर, अपार्टमेंट का नेम शुक्कतो कोई भी अपार्टमेंट, शुक्कतो खान अपार्टमेंट भी रख लीजिए। हेयर इन आफ्टर रिफर्ड एज अल मुशार इलैह फीमा बाद एज लैंडलॉर्ड का मुअज्जर, ठीक है। टीनेंट अल मुस्तअजर, टीनेंट का नेम, रिजाइडिंग जहां भी दे दें, दिल्ली, हेयर इन आफ्टर युशारु इलैहि फीमा बाद का मुस्तअजर, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इसमें कोई आपको कुछ पूछना है? हल लदैकुम अय्यु सुआलिन? ओके ग्रेट, चलें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, कोई पढ़िए, फैजान आप पढ़िए। Bismillahirrahmanirrahim. Number 1, property description. The landlord agrees to rent the property located at rental property address, the tenant. Number 2, rental amount and payment. The tenant has paid a refundable security deposit of ये वाला आपने पढ़ा क्या? amount in numbers. ये वाला, ये the ये tenant वाला? agrees, हाँ agrees to pay a monthly rent of amount in numbers, amount in words, payable on or before the date of every month. Third, security deposit. The tenant has paid a refundable security deposit of rate amount in numbers, amount in words to the landlord. Duration of agreement. This agreement is valid for a period of duration. सर ईजी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल क्या चीज, किसका मतलब? ईजी, हाँ ईजी Duration. एग्जाम्पल ग्रेशिया होता है, तो एग्जाम्पल मतलब हाँ। अला सबील मिसाल के मीनिंग में। हाँ एग्जाम्पल 11th month starting from start date and ending on end date. ठीक है, यहाँ Use तक of property. ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, आगे फिर करेंगे इसके बाद, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स को क्या बोलते हैं? शराइत, है ना, मुस्तलिहात। हाँ अशुरूत बोलते हैं, टर्म्स। मुस्तलहात बोलते हैं जब टर्मिनोलॉजी के मीनिंग में होता है टर्म, तो वो टर्म्स नहीं होता, वो टर्म होता है ओनली। वो एक मिनट यहाँ लिखो, ये होता है टर्मिनोलॉजी, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है टर्म, वो टर्म्स नहीं होता है, ठीक है। ये है सर शुरूत या शरा, अच्छा शुरूत टर्मिनोलॉजी। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है अल-मुस्तलह, अल-मुस्तलह, इसी के जमा अल-मुस्तलहात। तो यहाँ पर जो वर्ड टर्म जो बोलते हैं ना मुस्तलह की मीनिंग में, वो इसी का क्या होता है? शॉर्ट होता है, इसी का मुखफ़फ़ होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों का मिला के मुस्तलहात है क्या सर? हाँ टर्म नहीं, वो मुस्तला नहीं, ये हम एक अलग मीनिंग बता रहे हैं। जब भी हम वर्ड सिंगुलर यूज करेंगे टर्म, इट मीन्स अल-मुस्तलह, अल-मुस्तलह। When you are using this word as terms, so the term will never be used as terms. So I am describing the difference
the subtle difference between two words. So when you are using terms, it will mean the الشروط. الشروط. هل فهمتم الفرق؟ لا أستاذي. هذا واضح؟ terms means نعم نعم هذا واضح. okay. هذا مخفف من كلمة terminology. هذا مخفف. وإذا تقول terms هذا يعني الشروط. Okay. Conditions. Okay. Same difference will come when you are saying condition. Only condition mean the situation. And when you are saying conditions, under these is conditions. TC applicable बोलते हैं ना, terms and conditions. शर्तें लागू बोलते हैं ना, जी जी TC apply. conditions al-ahkam, अरबिक में से बोलते हैं al-ahkam. तो अगर शर्तें लागू बोलेंगे, एक मिनट, शर्तें लागू, terms and condition TC apply, तो इसको अरबिक में कैसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? हस्ब, बताइए. حسب الشروط हस्ब الشروط والأحكام. والأحكام. حسب الشروط الأحكام. والأحكام बोलेंगे TC apply. ये TC apply ना बहुत ट्रिकी वर्ड है, इसके अंदर में बहुत सा खेल हो जाता है बहुत से लोगों के साथ. TC क्या रहता है, पढ़ते नहीं सही से, बस एग्री कर देते हैं. Got it? चलिए, terms and conditions, al-ahkam والشروط والأحكام interchangeably दोनों एक दूसरे की जगह इधर उधर हो सकते हैं. Got it? चलिए, अब इसमें से कितने वर्ड हैं जो आपके लिए न्यू है? الصعب بالنسبة لكم. बताइए. एग्रीज, यत्तफिकु, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अल-अक़ार बोलते हैं या फिर अल-अरादी भी बोलते हैं. समझ गए? अल-अरादी. ठीक है. रेंटल प्रॉपर्टी एड्रेस, ये भी वाज़ेह है. एग्रीज अमाउंट. डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन वस्फ को बोलते हैं. डिस्क्राइब मतलब किसी भी चीज का, हाँ, वस्फ बयान करना. हाँ, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको. ठीक है. और रिफंड को क्या बोलते हैं? इस्तरद्द यस्तरद्दु इस्तिरदादन, मतलब रिफंड करना, कोई भी चीज वापस करना. इस्तिरदाद, रिफंड. ठीक है. सिक्योरिटी है तामीन के मीनिंग में, जो आप पैसा एज ए सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं. डिपॉजिट वर्ड हम पहले गुजर चुका है, इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट को हम पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. डिपॉजिट ईदा, अमाउंट इन नंबर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, लैंडलॉर्ड, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट. ड्यूरेशन मुद्दा होता है. ठीक है. वैलिड का मतलब यंतही या मुद्दतुल इंतहा, सतकुन यानी सलाहिया भी बोलते हैं. ठीक है. इंतहा सलाहिया, एक्सपायरी अंडर सलाहिया, जैसे बोलते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट डेट, एंड डेट. ठीक है. 4 तक पढ़े थे. अब बताइए, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन को क्या बोलेंगे? वस्फुल अराज़ी. वस्फुल अक़ार या वस्फुल अरादी. समझ गए? चलिए, द लैंडलॉर्ड एग्रीज, क्या कहेंगे? करिए कोई. द लैंडलॉर्ड एग्रीज, यत्तफिकु या युवाफिकु? यत्तफिकुल मूजिरु. हाँ, यत्तफिकुल मूजिरु या युवाफिकु अल मूजिरु. ठीक है. टू रेंट द प्रॉपर्टी, रेंट का मतलब लीजारती, लीजारतिल अरादी. युवाफिकुल मूजिर अला तअजीर, अज्जर या अज्जर तअजीर या अला ईजारी, जो भी कहने. ठीक है.
टू लैंड द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या होगा? अकार। अकार। हाँ, लोकेटेड الموقع है ना, फी मौके कदा कदा, जो भी मौके में जो भी इसमें हो, या अल काइन भी बोल सकते हैं, अल मौजूद भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फी मौके कदा कदा, जो भी मौका हो उसका लोकेशन हो वो कहेंगे। रेंटल प्रॉपर्टी एड्रेस, जो भी उस प्रॉपर्टी का एड्रेस हो वो एड्रेस को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। टू द टेनेंट للمستأجر लिलमुस्ताजिर, ठीक है। रेंटल अमाउंट एंड पेमेंट, मबलग, मबलग का मतलब क्या होता है? अमाउंट, और पेमेंट का मतलब होता है दफ़। तो क्या बोलेंगे? दफع हाँ, अद्दफ़। मबलगुल इजारी, مبلغ الإجابة دفع मबलगुल इजार व दफ़। والدفع हाँ, the tenant agrees to pay a monthly rent of, जो भी अमाउंट हो, लेट्स से हम एक सपोज कर लेते हैं कोई नंबर 8,000, 8,500, 8,500 रुपीज, हम ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट इन वर्ड्स में दे देंगे, यहाँ नंबर में दे देंगे। पेएबल ऑन और बिफोर द डेट, कोई भी डेट दे दें, ठीक है। हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डेट मान लेते हैं 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है। हाँ, ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। चलिए करिए। द टेनेंट एग्रीज टू पे, युवाफिकु يوافق المستأجر मुस्तअजिरु على to pay دفع على دفع على دفع إيجار إيجار الشهري الإيجار الشهري على دفع إيجار شهري। उसके बाद उसका अमाउंट कितना? कदरुहु, जिसका अमाउंट बनता है कितना? قدره 8,500 500 रुपया ربية हाँ, ठीक है। तो यह हो गया। अब उसका पेबल का मतलब इसको पे किया जाएगा, सयतिम्मु दफ़उहु, ठीक है। قبل हाँ, फी मौइद, ठीक है। पेबल और बिफोर, तो यहाँ पर होता है कि जहाँ पर जो अमाउंट पे किया जाएगा ऑन द डेट, वो डेट का डेट डालेंगे, या फिर उससे पहले। इसको ना अरबिक में इस तरह कहते हैं, फी मौइदिन अक़साहु, जिसका आखिरी हद ये होता है। रुके, यहाँ पर लिखते हैं, हो गया हमारा वर्ड फाइल, कहाँ चला गया? इसमें लिख रहे थे, हाँ। तो फी मौइदिन अक़सा, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन, फी मौइद अक़सा, डेट डाल देंगे 10 जनवरी, 10 जन। तो क्या बोलेंगे? फिल आशर, في العاشر अक़साहु मतलब आशरा, या फिल यौमिल आशिर, जो भी, आशर मिन दिसंबर, من شهر ديسمبر दिसंबर भी कह सकते हैं डायरेक्ट, आशर दिसंबर, मिन दिसंबर या दिसंबर, जो भी। من शहर दिसंबर कह सकते हैं सर। हाँ, आशरा मिन शहर दिसंबर भी कह सकते हैं, या आशरा दिसंबर, 10 दिसंबर डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अल्फैन, आम अल्फैन इसना वाइसनान وعشرون اثنان وعشرون، ठीक है। चलिए, ठीक है। मिन कुल्ले शहरिन, इतने इतने डेट के हर शहर में, हर मंथ में, ठीक है। अब आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या बोलेंगे? हाँ, मबलग तामीन भी बोल सकते हैं, या फिर ईदाउल तामीन, ठीक है। तो मबलग तामीन यहाँ कर लीजिए, ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट के मीनिंग में, ठीक है। द टेनेंट हैज पेड अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ इतना इतना अमाउंट, जो भी हो, कदा कदा, टू दी
लैंडलॉर्ड। तो द टेनेंट हैज पेड, दफा अल मुस्तअजिरु तमीनन, सिक्योरिटी अमाउंट क्या है जो कि रिफंडेबल है, तो काबिल काबिल लिल इस्तिरदाद, रिफंडेबल। ठीक है, रिफंड को क्या बोलते हैं? इस्तरद, इस्तिरदाद। 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 तो आपने जैसे कि अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, राइट, और वो चीज़ पसंद नहीं आई और उस चीज़ को वापस कर रहे हैं, तो आपको कोई बोले प्लीज रेज अ रिफंड रिक्वेस्ट टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तो इसको ट्रांसलेट करिए आप यहीं पर, प्लीज रेज अ रिफंड रिफंड रिक्वेस्ट टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। बताइए, ट्रांसलेट कीजिए। प्लीज को क्या बोलेंगे? आप लोग कीजिए, हम हेल्प करेंगे बस। प्लीज बताइए। बिफजलिक, बिफजलिक, युरजा, युरजा करते हैं डायरेक्टली, युरजा। ठीक युरजा, है, हाँ इत्तिसालुका। हाँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? रिफंड रिक्वेस्ट। आप चाहे तो रेस का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर ले या फिर उसको हजफ कर दे, दोनों कर सकते हैं। रेस का मतलब होता है रफा, रफा। तलब का मतलब ये रिक्वेस्ट का मतलब आपको पता ही है, तो क्या बोलेंगे? रफा यहाँ रेस का मतलब यहाँ पर तस्जील का मीनिंग में, युरजा इरजा तस्दीक। तस्जील, ठीक है, युरजा तस्जील, तलब रिक्वेस्ट, फिर रिफंड, युरजा तस्जील, तलब। करिए भाई, आप लोग तो काफी मतलब टैलेंटेड हो गए होंगे इतना करने के बाद। युरजा तस्जील, तलब कस्टमर अल इस्तिरदाद। इस्तिरदाद। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तलब अल इस्तिरदाद इला मसऊल कस्टमर को खिदमत उमला। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मसूल तनफीजी होता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन मसूल डायरेक्टली कह सकते हैं। अजित तस्दील तलब इस्तिरदाद ला मसऊल तस्दील। इला मसूल खिदमत उमला। हाँ, इला मसूल तनफीजी li खिदमत उमला। एग्जीक्यूटिव मसूल तनफीजी होता है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, उसने मसूल बोल दीजिए। यह हो गया, युरजा तस्जील तलब इस्तिरदाद इला मसूल खिदमत उमला। अब आपको कहना है प्लीज रिफंड माई अमाउंट, तो क्या कहेंगे? युरजा इस्तिरदाद मबलगी, प्लीज रिफंड माई 200 रुपीज, क्या कहेंगे? युरजा इरजा इस्तिरदाद इजा इस्तिरदाद 200 रुपया रुपया। हाँ, रुपया। रुपया। ठीक है, तो ये वर्ड आपको मास्टर हो जाना चाहिए। इस्तिरदाद का मतलब क्या होता है? रिफंड। रिफंडेबल। हाँ, ये उससे काबिल इंपोर्ट इस्तिरदाद एक्सपोर्ट से है क्या? क्या? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं, है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो होता है तस्दीर, इसका सद्दर यूसुफ। हाँ, अद्दुल मुसद्दरा लिन्नफ्त कहते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज। वो होता है ईराद, ईराद होता है, इस्तिराद होता है। इस्तिराद का मतलब होता है क्या? इंपोर्ट करना। और शायद वो सौद तस्दीर का मतलब होता है तस्दीर। एक्सपोर्ट करना, समझ गए? इस्तिराद का मतलब इंपोर्ट, तस्दीर का मतलब एक्सपोर्ट। इसी से आता है क्या? अद्दुल अल मुसद्दरा लिन्नफ्त, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री। कंट्रीज। अद्दुल अल मुसद्दरा, इसको शायद क्या बोलते हैं, इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी आता है, रुकिए मैं पहले लिखता हूँ। PLO सर, PLO। पीएलओ वो तो नहीं, होता है वो नहीं अद्दुल सर। मुसद्दरा लिन्नफ्त, बोलेंगे
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पीसी ऐसे करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज एपेक या ओपेक कंट्रीज होती है। ओपेक सर, ओपेक। हाँ ओपेक जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक होती है। ये लोग पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता हाँ है ये। पहले वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जबहत तहरीर फ़िलिस्तीन ऐसे करके कुछ है, मुनज़्ज़मत तहरीर फ़िलिस्तीन, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा था, इस्तिरदाद के मीनिंग को आपके इसमें, तो प्लीज रेज अ रिफंड रिक्वेस्ट क्या होगा, युरजा तस्जील तलब الاسترداد तब इस्तिरदाद الى مسؤول تنفيذي للعملاء या الى مسؤول خدمة العملاء। चलिए ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ड्यूरेशन ऑफ, हाँ अब ड्यूरेशन, तो सिक्योरिटी क्या बोलेंगे, अलमबलग काबिल लिल-इस्तिरदाद, जो भी मबलग होगा XYZ कोई भी अमाउंट यहाँ पर रख दीजिए, डिपॉजिट आप रख दीजिए 10,500 10,500, तो क्या कहेंगे 10,000 व 500 रुपया, ठीक है। टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को क्या वर्ड किया है, इला लिल मुजर मुअज्जर, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे, मुद्दा, ठीक है। मुद्दतुल हाँ मुद्दतुल इत्तिफाकिया, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर अ पीरियड, यहाँ पर ड्यूरेशन होगा 11 मंथ, स्टार्टिंग स्टार्ट डेट होगा, एंडिंग एंड डेट होगा, ठीक है। तकूनु हादिहिल इत्तिफाकियतु सारियतन, मतलब वैलिड होगा, सारिया होगा, या फी सलाहियतिन, यानी कि ये अपने एक्सपायरी डेट के अंदर होगा, सलाहिया कहते हैं। एक्सपायरी डेट को क्या बोलते हैं, तारीखुल इंतहा, और जो जो चीज़ तारीख इंतहा सलाहिया भी बोलते हैं एक्सपायरी डेट को। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये उर्दू वाला सलाहियत नहीं है, बट गए उर्दू अरबिक में बोनुन शासिअ, हुनैक शत्तान मा बैनहुमा, एक्सपायरी डेट। अब बहुत से लोगों की यह गलत फहमी है, उर्दू अरबिक को सेम ही समझ लेते हैं। और सलाहिया, तारीख इंतहा सलाहिया एक्सपायरी डेट, एक मिनट, तारीख इंतहा सलाहिया क्या होगा, एक्सपायरी डेट, ठीक है। वैलिड, वैलिड का मतलब सारी है, ठीक है। तो अगर कोई चीज जैसे कि दिस केम इनटू फोर्स, दिस इज, बताइए, सारिल मफूल भी बोलते हैं, दिस केम इनटू फोर्स, या अभी दिस इज इनटू इज वैलिड भी बोलते हैं, तो हादा अस्बह सारियल मफऊल बोलते हैं। सारियन का मतलब वैलिड होता है, ठीक है। अस्बह सारियल मफऊल, जा हैज़ तनफीज़ बोलते हैं, अस्बह सारियल मफऊल, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, दखल हैज़ तनफीज़, दखल हैज़ तनफीज़, वैलिड सारियन, या सारियतुल जबल। सर इसका मतलब क्या है, समझ में आया? किसका ये दिस केम इनटू फोर्स, मतलब यह है कि कोई भी लॉ इफेक्टिव जो होता है, देख जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड बोलता हूँ, एक सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ, इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट योर सर्विस
will be transferred to, अब ये पर टू कहीं भी, टू कोई भी, जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, फिर आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो कैसे बोलेंगे इसको? इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट came into force, your service will be transferred to, तो سيتم انتقال خدمتك إلى जहाँ भी, وسيدخل هذا حيز التنفيذ في يوم इतना في هذا اليوم, इस तरह करेंगे. सबसे पहले your service will be transferred to, कोई भी शहर का नाम, سيتم انتقال خدمتك إلى نيو دلهي وسيكون هذا ساري المفعول في هذا اليوم, وسيدخل هذا حيز التنفيذ في هذا اليوم, سيكون هذا ساري المفعول في تاريخ كذا وكذا, जो भी तारीख डाल दें, ये तारीख this date, तारीख कदा, ठीक है. या फिर हम इसको क्या कहेंगे, वसयदखुलु هذا حيز التنفيذ في تاريخ كذا وكذا, سيدخل هذا حيز التنفيذ في तारीख कदा, जो भी डेट हो आपका, ठीक है. हाँ चला गया. चले, तो वैलिड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर पीरियड, कहेंगे तकून हदिह इत्तिफाकिय्या सारियतन लिमुद्दती, फिर यहाँ पर लिमुद्दती 11 शहरन, 11 शहरन. स्टार्टिंग डेट कोई भी दे दीजिए और एंड डेट कोई भी दे दीजिए. स्टार्ट डेट को कहते हैं बिन तारीख अलबद, जो भी हो, वतनतही यानी कि ये खत्म होगा, विल एंड, ये एंड होगा फिर तारीख, वो तारीखुल इंतहा यानी इंतहाई डेट दे देंगे, आखिरी खत्म होने की डेट दे देंगे. जी आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क खराब है। सर अभी आपने जो तारीखुल इंतहा के साथ एक और वर्ड जोड़ा था, तारीखुल इंतहा के साथ, हाँ, तारीख तो शायद वो फास्ट जगह यूज है। करते हैं या फिर नॉर्मली यूज करते हैं? वैसे अभी तक हमने कभी देखा नहीं है. कौन सा वर्ड जोड़ा था मैंने? तारीखुल भाई, इंतहा तारीखुल सलाहियत, तारीख इंतहाई इंतहाई सलाहियत, उमूमन आईडी कार्ड वगैरह में जोड़ते हैं. जैसे आईडी कार्ड एक्सपायर होती है, एक्सपायरी डेट वहां डालते हैं ना, तो इशू डेट, एक्सपायरी डेट, जी, हाँ, तो वहां पर डालते हैं तारीख इंतहाई सलाहियत, तारीखुल इजरा. जैसे सऊदी अरब वगैरह में, ये सब में जो आईडी कार्ड इराक वगैरह में होती है, उसका एक्सपायरी डेट भी होता है. हाँ, जैसे यहाँ के वो बनता है अकामा. हाँ, एक इकामा वगैरह बनता है, तो बांध दिया. हाँ, तो उसमें एंड डेट एक्सपायरी डेट और स्टार्टिंग डेट दोनों होती है. तारीखुल इजरा होता है और तारीखुल इंतहा सलाहिया होती है. और तारीख इंतहा सलाहिया, जैसे आप दवा खरीदे, कोई एक्सपायर हो रही है, तो उसमें एक्सपायरी डेट दी हुई है, तो वहां पर भी तारीख इंतहा सलाहिया होती है. कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा जिसका एक्सपायरी डेट है, तो वहां पर यूज होता है. ये सब एग्रीमेंट वगैरह में उमूमन तारीखुल इंतहा यूज होता है. मतलब ये है कि वो दवा बेस्ड बिफोर, उस वक्त तक उसकी सलाहियत काम करेगी, उससे पहले नहीं काम करेगी. तो बेस्ट बिफोर को भी लूजली ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तारीख इंतहाई सलाहिया, क्या सतकून सालिहतन क़ब्ल, इतना जो भी प्रोडक्ट है इससे सालिहतन लिल इस्तिख्दाम, सतकून हादिहिल, जो भी वो प्रोडक्ट आप कह लें, सतकून हादिहि तुमूर काबिलतन लिल इस्तिख्दाम सालिहतन लिल इस्तिख्दाम क़ब्ल, या तारीख इंतहाई सलाहिया क़ब्ल,
यहाँ ऐसे करके डाल देते हैं। जब आप प्रोडक्ट्स का ट्रांसलेट करिएगा ना तो उसमें ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, यू विल मेंशन द ड्यूरेशन हेयर, देन स्टार्ट डेट। ठीक है, ستكون هذه الاتفاقية سارية لمدة كذا وكذا لمدة 11 شهرا هذا شهرا التي تبدأ من जो कि स्टार्ट होता है कोई सा डेट, जो भी डेट दे दे, उसके बाद वयंतही, ठीक है, वो मुद्दा वतंतही जो भी कह लें, व तारीख इंतहाइहा। चलिए अब इसको एक बार कोई कर लीजिए या मैं कर दूं? आप कर तो दीजिए। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, वस्फ al-aqar, the landlord agrees to rent the property located at rental property address डालेंगे to the tenant, यतवाफकु या युवाफिकु al-मुअजिर या मालिकुल अकार जो भी कह लें, to rent this property, to rent the property, तो लितअजीरी هذا العقار मौक़िउहु, लोकेटेड मतलब मौक़िउहु, जिस आकार का मौक़ि ये है, या अलकाइन भी कह सकते हैं, मौक़िउहु या हादल आकार अलकाइन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस दे दें, XYZ कोई भी एड्रेस यहाँ पर डाल दें, टू द टेनेंट ले अल मुस्तअजिर, रेंटल अमाउंट एंड पेमेंट, मबलगु अल, बताइए, अल इजार व दफ़अहु। ठीक है, मबलग व दफ़अल इजार जो भी कह लें, मबलगुल इजार व दफ़अ डायरेक्टली कह सकते हैं, मबलगुल इजार व दफ़अ। ठीक है, द टेनेंट एग्रीज टू पे अ मंथली रेंट ऑफ 8,500। ठीक है, पेएबल ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एवरी मंथ। तो कैसे करेंगे? युवाफिकु अल मुस्तअजिरु अला दफ़अ इजारिन शहरिय्यिन क़दरुहु 18 व 500 रुपया। ठीक है, पेएबल का मतलब यतिम्मु दफ़अहु, इतने डेट को, फी मौइद, ठीक है, अक़साहु लगा देंगे, फी मौइद अक़साहु, जिसका इतना डेट है, आखिरी डेट है क्या, अक़साहु मिन शहर दिसंबर, अब तारीख दे देंगे जो भी तारीख, 10 दिसंबर, मिन 10 दिसंबर सनत 2022 मिन कुल्ल शहर, ऑफ एवरी मंथ मिन कुल्ल शहर। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या बोलेंगे? मबलग अत्तमीन, द टेनेंट हैज पेड अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट इन वर्ड्स टू द टेनेंट, ठीक है, टू द लैंडलॉर्ड है, क्या बोलेंगे? द टेनेंट दफ़अ अल मुस्तअजिरु तअमीनन क़ाबिलन लिल इस्तिरदाद क़दरुहु 10,500 करा था ना, 10,500 रुपया लिल मुअजिर टू द लैंडलॉर्ड, तो ले मालिकिल अरादी, ले मालिकिल अकार। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, मुद्दतुल इत्तिफाकिया, क्या बोलेंगे? द टेनेंट, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेट, स्टार्टिंग डेट देंगे, एंड एंडिंग ऑन। तो तकून हादिहिल इत्तिफाकियतु सारियतन लिमुद्दति 11 शहरन। अब उसके बाद कब से है स्टार्टिंग? तो एतबारम मिन भी कहते हैं, बदअम मिन या एतबारम मिन, तो यहाँ पर तारीखुल बद डालेंगे, और उसके बाद तंतही, यानी हादिहिल इत्तिफाकिया तंतही फिर तारीख दे देंगे, तारीखुल इंतहा जो भी डेट आपका हो वो तारीखुल इंतहा यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लें, बाकी इसका हम जो अभी तक किए हैं उसका ट्रांसलेशन हम शेयर कर देंगे, बाकी कल कर लेंगे। जी जी इंशाल्लाह। ठीक, कोई दिक्कत?
बताएं। सर एक ईजाद तमयन या क्या बताए, वो एक ईजाद ईजाद, ईजार होता है ना, ईजार। ईजार का मतलब होता है ईजाद किसी भी चीज को रेंट पर देना। आजरो यूजरो ईजारन। इस्तेजार का मतलब होता है रेंट पर लेना। कर लेना। इस्तेजार का मतलब रेंट पर देना। जी जी सर। हाँ, ये सारी वर्ड जो है ना, क्या बोले? जो सारी मफऊल कोई वर्ड है ना अभी जो आपने दिखाया था। सारी अल-मफ़ऊल का मतलब इफेक्टिव होता है। सारी अल-मफ़ऊल यहाँ पर मैंने लिखा था। जी जी आपने लिखा था, लेकिन सारी सारी मफूल क्या ले? सर, असलहा सारी सारी मफूल। समझ में नहीं आया था। सरा यसरी मतलब होता है कोई चीज बन जाना। तो सरा यसरी, उसे सारी मतलब ये इफेक्टिव, यानी अच्छा, ये एंटर्ड सारा इनटू द है असल में। इफेक्टिवनेस। हाँ, सर ड्यूरेशन इजी आपने बताया, इजी का मतलब क्या है? इजी मतलब अला सबील मिसाल। इजी लिखते हैं अला सबील मिसाल। ये फॉर शॉर्ट एग्जांपल, होगी थी, ठीक है। इजी का फुल फॉर्म शायद एग्जांपल ग्रेशिया ऐसा करके कुछ होता है। एग्जाम्पल। ये फॉर एग्जांपल के लिए यूज होता है इजी। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। यार ये लिखा क्यों नहीं रहा है? इजी, इजी, ये इजी ऐसा करके लिखते हैं डॉट के साथ। एग्जाम्पल। है ना, एग्जाम्पल ग्रेशिया। एग्जाम्पल ये लैटिन वर्ड है, एग्जाम्पल ग्रेशिया, यानी फॉर एग्जाम्पल के मीनिंग में। ये स्टैंड फॉर एग्जाम्पल ग्रेशिया इन लैटिन is used to introduce examples and illustrate a statement। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक, चलिए क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। इंशाअल्लाह। मع السلامة، سنلتقي غدا अच्छा। بإذن الله. اللقاء غدا. إلى اللقاء.